بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو کے پروگرام صحت ہے زندگی کے سیگمنٹ آسک اے جی پی میں ہوں آپ کا میزبان رضوان ارشد۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام صحت کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک ایسا انٹریکٹیو پروگرام ہے کہ جس کے اندر آپ ہمارے ایکسپرٹ جو بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کا سوال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ڈاکٹر عمران گوہر صاحب جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ آپ کے سوالات کے جواب دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہمارا یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام چینل ٹی وی کے اوپر آپ اپنا کوئی بھی سوال دے کر ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لے سکتے ہیں۔ ہماری جو لائیو ٹیلی فون لائنز ہیں وہ تھوڑی دیر میں اوپن ہو جائیں گی۔ آپ اپنا سوال ہمارے ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر عمران گوہر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ سوال پوچھیں تو آپ اپنا نام، اپنی ایج اور اپنا جو بھی سوال ہے اس کو اسپیسیفک اور مختصر انداز میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں تاکہ آپ کے ہم سوال کا بہترین انداز میں جواب دے سکیں اور ہمارا وقت بھی بچ سکے اور بہت سارے جو دوسرے ہمارے کالر ہوتے ہیں وہ بھی اپنے سوالات کا جواب لے سکیں۔ تو ہم اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ڈاکٹر عمران گوہر صاحب سے ایک سوال کی صورت میں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جو موجودہ کرونا کی صورتحال ہے تھوڑی سی بتائیے گا کہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی اور یو کے حوالے سے بھی؟ تھینک یو۔ تو سب سے پہلے تو یو کے کی جو صورتحال ہے، ابھی آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ آج یونیورسٹی کے لیسٹر میں دے آر ڈوئنگ اے لاک ڈاؤن، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ یہ ہے کہ اس کسی جگہ سے بھی جہاں زیادہ کیسز کی رپورٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس اسپیسیفک ایریا کو لاک ڈاؤن کریں رادر دین دا ہول کنٹری another bits and pieces. So basically ٹریس اینڈ ٹریک کا یہ ایک بڑا فائدہ ہے کہ جو لوگ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں جہاں سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس اسپیسیفک ایریا میں زیادہ کیسز ہو رہے ہیں تو وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا جائے گا اور اس ایریا کو بند کیا جائے گا تاکہ وہ وہاں سے باہر پھیل نہ سکے۔ تو ابھی تک جو رپورٹ ہے ہاسپٹلس میں ایڈمیشنز یا ڈیتھس جو ہیں وہ تو کم ہو رہی ہیں اور کم سے کم لوگ وینٹیلیٹر پہ جا رہے ہیں کمپیئر ٹو فیو منتھس بیک۔ لیکن ظاہر ہے بہت ہی اس وقت جو سب سے زیادہ بحث ہے وہ یہ ہو رہی ہے میڈیکل فیلڈ میں کہ کیا اب ریسرچ ہوگا، کیا یہ دوبارہ سے اسی طرح تو نہیں آ جائے گا سمر میں جیسے کہ اپریل میں ہمارے یہاں ہوا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کسی کے پاس اس کا جواب تو نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن ہمارے لیے میڈیکل فیلڈ کے لیے یہ بھی بہت چیلنجنگ ہے کیونکہ اب ہماری جو بھی پلاننگ ہے یا جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ اس میں ہر کوئی اس چیز سے ڈرا ہوا ہے، یا پھر کہہ لیں کہ کوشش ہے کہ وٹ ایف وی ہیو اے ریسرچ ان فیو منتھس ٹائم، اور اگر وہ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں گے۔ اور یہ سوال آئی تھنک صرف یو کے میں نہیں پوری دنیا میں اس وقت بحث ہے، یہ سارے لوگ اس بارے میں پریشان ہیں اور اس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی بات کی، چلیں اس پہ تو آئیں گے، لیکن ابھی تک اس نے جو ایفیکٹ کیا ہے لوگوں کو، کیونکہ گزشتہ پروگرام میں بھی جو ہے ہمارا یہ بہت اہم سوال تھا، لوگوں نے ہم سے بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے پوچھا، وہ رہ گیا تھا کہ اس پورے وبا کے پیریڈ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تنہائی کا شکار بھی ہوئے، ڈپریشن میں بھی گئے اور انیگزائٹی میں بھی چلے گئے۔ بالکل۔ تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں اس وقت، وہ کس طرح اپنے آپ کو ایک نارمل لائف کی طرف لے کر آ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ سوال بہت زیادہ پوچھے جا رہا ہے، اور جنرل پریکٹس میں انگزائٹی ڈپریشن ہمارا ایک بہت بڑا ورک لوڈ آلریڈی ہے ان دس کنٹری، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوئی ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ سو فار ایگزامپل اگر ہم 20% پیشنٹس ہمارے انگزائٹی ڈپریشن کے ہوتے تھے تو اب بڑھ کے 30-40% تک لوگ ہیں، اور بعض دن تو ایسا ہوا ہے ہمارے، میں پچھلے مہینے کی بات کروں گا کہ آلموسٹ ایک جی پی کے پاس 8-10 کالز جو ہے وہ انگزائٹی ڈپریشن کے سلسلے میں آئی ہیں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ کافی اسٹریسڈ ہیں، اور رائٹلی سو ایز ویل، کیونکہ دیکھیں یہ اس طرح کی پینڈیمک دنیا میں کبھی نہیں ہم نے دیکھی نہ سنی، تو اس دفعہ اس کے افیکٹس ہونا تو لازمی ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں نارمل فینومینا ہے۔ ایون ڈاکٹرز، نرسز، میڈیکل اسٹاف، دے آل اینکشیس۔ تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں اتنا
परेशान होना चाहिए, स्टिग्मा नहीं अटैच करना चाहिए, नेचुरल फिनोमेना है, लाइफ लॉन्ग किसी के साथ हम कोई भी ह्यूमन बीइंग इस तरह की सूरत हाल से पहले नहीं गुजरा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को मशवरा मेरा ये होता है कि बी ऑनेस्ट, और इस चीज़ को अगर ये कंसिस्टेंटली हो रहा है तो इसको आइडेंटिफाई करके अपने डॉक्टर से बात करें। देयर लॉट ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल जो कि आपको मशवरा दे सकती हैं काउंसलिंग के सिलसिले में कि है। और अगर ये फ़र्ज़ कीजिए कि बहुत लंबा हो जाता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से रुजू करें। मेडिकेशंस भी हैं, एडवाइस और हेल्पलाइंस भी हैं जिनको किया जाता है। घर में रह के सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़े ऐसे लोगों से बात करें जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी दें। मैं इस चीज़ के लिए लोगों को बड़ा, इवन यहाँ पे या पाकिस्तान में काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा मीडिया की ओवरडोज से लोगों को मना कर रहा हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा हम लोग इतनी न्यूज़ देख रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ओवरडोजेज हो गई है न्यूज़ की एक्चुअली कोरोना वायरस के सिलसिले में। तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट आवर मूड, इट विल अफेक्ट आवर बिहेवियर एंड मेक अस स्ट्रेस, बिकॉज डूम एंड ग्लूम, बुरी खबरें आप जब सुनते रहेंगे मुसलसल तो ऑफकोर्स आपको वो अफेक्ट करती है। तो इसको थोड़ा सा लिमिटेशन में देखें, न्यूज़ दिन में एक वक्त बना लें कि जब न्यूज़ को देखें और लोगों से पॉजिटिव एनर्जी लें, ऐसे लोगों से रब्ता करें, ऐसे लोगों से बात करें जो कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिवली इनकरेज करें चीज़ों के बारे में, और हर वक्त एक ही टॉपिक को डिस्कस करने से थोड़ा सा गुरेज करें। सही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इस सवाल के जवाब का। इसी सवाल में से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि उनकी कॉल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी बोलें, आपका नाम बताएं, एज बताएं और सवाल करें। मेरा नाम फरजाना है। जी फरजाना। और मेरी एज 64 है। जी जी। तो मेरा जो है ना, मुझे आर्थराइटिस थी यंग एज में ही, तो ये मुझे ना तकरीबन 6 वीक्स हो गए हैं। मेरा कॉलर बोन में पता नहीं क्या हुआ है, आर्थराइटिस है, तो थोड़ा ऐसे हड्डी आपको पॉप अप हो गई है। ओके। तो पीछे मेरे शोल्डर ब्लेड में भी पेन है, सारा रिब में थोड़ा पेन आती है, पाँव सूजे हुए हैं। तो मेरा नी रिप्लेसमेंट भी हुआ है आज से 8 साल पहले। मैंने बोला कि मुझे यंग एज में ना आर्थराइटिस थी, तो चलती नहीं था। मुझे ना बहुत टेस्ट, मेरा ब्लड टेस्ट भी किया है और मेरा किया क्या कहते हैं एक्सरे भी किया, तो वो आर्थराइटिस आई है। तो अब कोई डॉक्टर के साथ मेरी बात हो सकती है, कोई मुझे कंसल्टेंट देखे या मेरी ट्रीटमेंट करे। तो आपको ये जो कॉलर बोन में दर्द हो रहा है, इसके बाद आपका एक्सरे हुआ है? जी जी। अच्छा, एक्सरे हो चुका है आपको। तो आपने टैबलेट्स वगैरह ट्राई किए? जी। कोई टैबलेट लिए, पेन किलर्स? बस पेन किलर दी है थोड़ा पहले, उसके साथ ना मेरे ज्यादा इरिटेट मेरे गले में भी होता है, बहुत अनकंफर्टेबल है। तो अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे बात ये कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से मुराद थी इनकी। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ज़ाहिर है इट्स लाइक अ नेचुरल वेयर एंड टेयर और होता है बोन का और जॉइंट का, और उसमें कभी ना कभी दर्द होता रहता है, ख़ास कि कोई ना कोई एक्टिविटीज़ से, किसी एंगल में सोने से, कोई चीज़ को पिक करने से, इस तरह की चीज़ें जो है वो पेन को फ्लेयर अप कर देती हैं। इन्होंने एक बात मेंशन की कि इनको कोई कॉलर बोन में समथिंग इज़ पॉप अप, बट क्योंकि एक्सरे हो चुका है इनका और एक्सरे नॉर्मल, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है, तो इट्स अ गुड न्यूज़। सो इतना परेशानी की बात नहीं है। पेन रिलीफ अगर हम सबसे पहले सजेस्ट करते हैं कि पैरासीटामोल वगैरह ले लें, 2 टैबलेट्स 4 टाइम्स अ डे। अगर आप प्रोफेन या न्यूरोफिन ले सकती हैं तो वो ले लें दिन में 3 दफ़ा, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। और फ़र्ज़ कीजिए अगर ये भी काम नहीं करता तो फिजियोथेरेपी भी हो सकती है, तो उसके लिए अपने डॉक्टर से बात करें, दैट कैन हेल्प यू। आई डोंट थिंक इतनी जल्दी उनको, अगर क्योंकि एक्सरे और तमाम इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आई हैं, तो स्पेशलिस्ट कुछ और सजेस्ट करेगा। आई थिंक फिजियो वुड बी द बेटर नेक्स्ट स्टेप। राइट, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो वालेकुम सलाम। जी अपना नाम और एज बताइए और सवाल कीजिए। It's for myself. It's for my dad. Yeah. Yeah. He's got very 2 types of arthritis. The main problem he's got is in his knees and on his neck, and he's having very problems sleeping at night. And he sees your program, and he wanted me to ask you what is the best thing he can do for those. How old is he? He's going to be 90. 90 years of age.
So he got a pain in his knees and neck. Yeah, the main problem is his knees. He can't walk to his room to the bathroom. His bathroom literally about a couple of steps away from him. He's having very difficulty. Have you discussed with the doctor yet? Yeah, that's what they're saying. He's got 2 types of arthritis, and Yeah. because his age, and he's got other chronic diseases as well. His kidney failure, heart failure. Yeah. He's got a lot of problems. So no treatment has been done yet. No, because they can't do nothing. There's no Okay. treatment for arthritis, they say. Okay, I mean it's a difficult situation, but I'll give you my advice. Yes. Okay, sure, thank you. Sure. डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उनका भी सवाल ले लेते हैं जी। फिर आप दोनों सवालों का जी। जवाब इनको इकट्ठा दे दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी अपनी एज, नाम और क्वेश्चन कीजिए। जी नाम असलम खान, जी एज 72। जी सर, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि गैस्ट्रो जो है ना, वो मुझे गैस्ट्रो रही है कोई 8-10 साल। गैस्ट्रो से बाद में कॉन्स्टिपेशन हो गया है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ना, तो अब वो उन्होंने जो है ना कहा, जो मेरे मेडिसिन है वो मैं रेगुलर खा रहा हूँ, तो मुझसे ये हुआ कि 4-5 वीक हो गए हैं कि मुझे थोड़ा सा मेरा वेट कम हो गया, तो लिहाजा मेरा वो डेट आ गई है, तो वेंसडे को उन्होंने जो है ना टेस्ट करना है। कौन सा तो टेस्ट? जी कौन सा टेस्ट? जो नीचे से डाल के ना, कैमरा चेक या जी जी fine. कैमरा चेक। ठीक है, ठीक है। तो वो इसके लिए मैंने पता करना था कि भाई आया कि वो मैं टेस्ट करा के तो फिर रिजल्ट जो है इसके बारे में फिर क्या वो मजीद कोई मेडिसिन देते हैं या क्या होता है? सो बिल्कुल कराएं। मैं शॉर्ट एंड क्विक आंसर फॉर यू कि ज़रूर कराएं, ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपकी एज ग्रुप में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन एंड यू लूजिंग वेट, यू शुड गो फॉर द कैमरा चेक डाउन बिलो। वंस द कैमरा इज डन, देन द डॉक्टर विल डिस्कस विद यू लेटर। थैंक यू। ऑलराइट। यस डॉक्टर साहब आपके पास ऑलरेडी हाँ। एक सवाल है, लेकिन उससे पहले हम जी, एक जी। और कॉलर बिल्कुल, बिल्कुल। लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है मैंने। जी जी बोलें। हेलो डॉक्टर साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई देखिए, मेरा नाम जो है शहाबुद्दीन गौरी है और मैं 94 इयर्स ओल्ड हूँ। जी जी मेरे हिप के अंदर जो है प्रॉब्लम है, उसमें दर्द रहता है। 5 साल पहले उसका ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने रिप्लेसमेंट की थी हड्डी को। अच्छा, जब से मुझे तकलीफ है इसके अंदर, अब वो बहुत सी वो पेन किलर्स वगैरह, मैंने हर तरह के पेन किलर खाए हैं और फिजियो ने भी हर तरह से मुझे फिजियो ने किया है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आता। मैंने कंसल्टेंट ने मुझे 2-3 दफा बुलाया है, एक्सरे लिए हैं, दिखाया है। वो ये कहता है कि एक हड्डी जो है दूसरी हड्डी से रगड़ती है, जी इससे ये तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो इसको यही है कि पेन किलर खाते रहे आप, और इसका इलाज यही है कि एक दूसरा बड़ा ऑपरेशन और करें। तो वो तुम्हें सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी एज के लिहाज से और तुम्हारे डायबिटिक भी हो तुम, और ब्लड प्रेशर भी रहता है, तो ये सब चीजें हैं। तब आप शाहबुद्दीन साहब आपकी एज फिर से बताइएगा क्या है? 94। 94। ओके, थैंक यू। मैं समझ गया आपका सवाल। मैं आई विल कम बैक टू यू। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब। ओके, सो ये खातून थी जिन्होंने अपने फादर के बारे में सवाल किया था, और शहाबुद्दीन साहब का सवाल, एक्चुअली ये क्वाइट सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो मैं दोनों का आंसर देने की कोशिश करूँगा। जो खातून थी उनके वालिद की एज 90 थी, शहाबुद्दीन साहब की जो एज है वो 94 है, एंड ही इज़ हैविंग हिप पेन, और इनका शहाबुद्दीन साहब का हिप रिप्लेसमेंट भी हो चुका है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि इस एज में जाके दोबारा ऑपरेशन इज़ टू रिस्की फॉर एनीथिंग। ओके, तो वो बहुत मुश्किल है। और आई थिंक जो खातून ने अपने वालिद के बारे में बोला था, वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें कहते हैं, जैसे शहाबुद्दीन साहब ने बोला कि हड्डी से हड्डी घिस रही है, उसी तरह वही है बेसिकली। जो खातून थी उनके वालिद को भी हुआ और शहाबुद्दीन साहब को भी हुआ है। अब मसला ये है कि इस एज में सिवाय फिजियोथेरेपी के, पेन रिलीफ के, एंड कीप देमसेल्व्स एक्टिव, और विटामिन डी वगैरह लेते रहें, इसके अलावा कोई अल्टीमेट ऐसा कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ऑपरेशन की बात आती है, तो इट्स टू रिस्की फॉर देम एक्चुअली। सो मैं इनको यही सजेस्ट करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे फिजियो की एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो वो करें, पेन रिलीफ जो भी ले सकते हैं जिससे आराम मिलता है वो लें, और अगर थोड़ा बहुत मूव अराउंड करते रहें और चीज़ों करते रहें। अनफॉर्चुनेटली इट्स टू रिस्की टू डू एनी बिग इंटरवेंशन एक्चुअली विद दिस एज। सिर्फ अपनी वो फिजियोथेरापी और एक्सरसाइज वगैरह पर ही एंड फोकस पेन रिलीफ रहे, क्योंकि इस एज में
ऑपरेशन इज़ टू रिस्की. राइट. नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि आप ने जैसे कि देखा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर इमरान गौहर साहब, वो नाज़रीन के सवालात के जवाब दे रहे हैं. तो मैं आपको ये इनकरेज करूँगा कि हमारी जो टेलीफोन लाइंस हैं वो स्क्रीन पर आ रही हैं, स्क्रीन पर आप फ़ोन नंबर्स देख सकते हैं. तो आप हमारे डॉक्टर साहब से जो एक्सपर्ट हैं उनसे सवाल कर सकते हैं. अपने किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो आपको है, जो मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए. डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़, हम जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाला, उसका आपने जवाब दिया. उससे मिलती जुलती एक चीज़ है कि आया क्या ये चीज़ किसी भी फ़र्द को किसी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकती है? आई मीन कि क्या उसको डिप्रेशन और एंग्जाइटी अगर है तो क्या वो उसको डायबिटीज़ की तरफ लेके जा सकती है, हार्ट की किसी प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकती है, या कोई और ऐसी फिज़िकल डिजीज़ की तरफ लेकर जा सकती है? देखिए, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन ना ये एक अनदेखी सी चीज़ है, नज़र तो नहीं आती, लेकिन इट अफेक्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मैं एक दफ़ा एक कार्डियोलॉजिस्ट हमारे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि अगर हम क्वांटिफाई या देख सकते कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स को, तो स्ट्रेस sometimes one of the top reasons actually for heart attacks and stuff. So obviously stress, anxiety जो है वो हमारे जिस्म को अफेक्ट करती है हर फॉर्म एंड शेप में. डायबिटीज़ के सिलसिले में भी हो सकता है, हार्ट एंड इमोशंस जो हैं, इवन स्ट्रोक्स एंड कार्डियोवास्कुलर इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं इसकी वजह से. तो यस, ये तो हमें पूरे जिस्म को अफेक्ट करती है. स्किन, हर चीज़ अफेक्ट हो सकती है. तो हाँ, लेकिन मुश्किल ये है कि इसको हम क्वांटिफाई हम देख नहीं सकते, कि नज़र तो नहीं आती, तो ये मुश्किल है. लेकिन हाँ, जहाँ तक जो रिसर्च है या जो भी स्पेशलिस्ट हैं जो कहते हैं, वो डेफिनेटली इट हैज़ अ ह्यूज रोल इन दैट. अगर हमारे पास कॉलर नहीं है तो मैं एक चीज़ ज़रूर हमारे पास एक कॉलर हैं जी. हमारे पास नाज़रीन में कॉलर हैं, हम उनसे बात करेंगे अभी. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. थैंक यू वेरी मच. बड़ा फ़ायदे मिल रहे हैं हमें. तो मैंने एक सवाल करना है. जी बोलें. कि वो डॉक्टर साहब, मुझे सारी बॉडी में ना ऑस्टियोआर्थराइटिस है. जी. तो घुटने बहुत ख़राब है. जी. तो बैक में, हिप में, लाइक सब तरफ ही दर्द हैं. तो अगर मुझे डॉक्टर कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवा लो, तो बाकी दर्दें भी ठीक हो जाएंगी या वो उसी तरह ही रहेंगी? आपकी एज और नाम बता दें. एज मेरा वो 68 है. 68. एंड योर नेम? नारा. सॉरी? मिसेस आरा. ओके. तो मुझे दर्दों ने बहुत पागल किया. डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, इलनेस माशाल्लाह. जी, मुझे आपका सवाल आ गया. बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब. अभी हम इनका भी जवाब आप दीजिएगा, लेकिन अभी एक और कॉलर है हमारे साथ. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, अपना नाम और एज बताएं और क्वेश्चंस प्लीज. जी, मैं तो बर्मिंघम ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ. ਤੇ ਏਜ ਮਾੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 59 ਨਹੀਂ. मैं तो कोल पूछना है. मैं तो प्रोग्राम वाल तक नहीं रहनी माशाल्लाह ठीक जाने की कोशिश करनी है, फोन करना नहीं दिलेशना चेक की जानी है. निकी है और बहुत प्रॉब्लम है, शुगर, ब्लड प्रेशर, एंजाइना या पैरालाइसिस, पर बिग प्रॉब्लम हमारी ब्लड कैन बहुत ज्यादा जिक्स नहीं. ये प्रेस्टीज स्टेशन है 4, 5, 6, 7 ये मोरे आने खराब है. 50 स्टेशन है, फिर स्टेशन है, वो आए पूरी जिक्स जड़ी है ना, गैप खराब. पर इतनी में तकलीफ होनी ना वो ज्यादा, भाई जरा कोई चीज या थोड़ा जी मूवी करा, नमाज में बहुत पढ़नी. बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर साहब, इन्होंने जो सवाल पूछा, इनकी एज थी 59, नाम मैं नोट नहीं कर सका. तो इनके मोहरों के अंदर तकलीफ़ है और हिप में भी इनको तकलीफ़ होती है. जब भी ये कोई मूवमेंट करती हैं, नमाज वगैरह पढ़ती हैं, या थोड़ा उठना हो या झुकना हो किसी वक्त, तो उस वक्त इनको जो है वो तकलीफ़ होती है. जनरलाइज्ड जॉइंट पेन. तो इससे पहले भी आपके पास एक क्वेश्चन है. सो शैल वी स्टार्ट. ओके. सो यस, इससे पहले जो ख़ातून थी, उनका 68 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने बोला कि आर्थराइटिस है हिप में, बैक में, नी में. उनका क्वेश्चन ये था कि आया कि हम नी रिप्लेसमेंट करा लें कि नहीं कराएं, और अगर नी रिप्लेसमेंट कराने से क्या दूसरे दर्दों में बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी. अगर शी इज़ नॉट ओवरवेट, अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है, और अगर है तो मैं कहूँगा कम कर लें, और अगर नी रिप्लेसमेंट हो सकती है तो मैं उनको मशवरा दूंगा करा लें. उसकी वजह यह है कि नीज़ जो हैं वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, और उसकी वजह से अक्सर हमें रेफर्ड पेन इन द हिप भी हो जाता है. तो अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट पहले
بنسبت آپ کے ہپ سے، تو میرے خیال میں کرا لینا چاہیے، اور اس کے بہت فائدے ہیں اور ریزلٹس بہت اچھے ہیں. اوبویسلی اس کے ساتھ ساتھ ان کو فزیو، ویٹ ریڈکشن وغیرہ بھی کرنی پڑے گی، لیکن آئی تھنک میری ایڈوائز ان کو یہ ہوگی کہ وہ کروا لیں، اور اس سے اس سے بہتری آئے گی ہپ میں بھی. میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا اوبویسلی، لیکن بہتری ضرور آئے گی انشاءاللہ. رائٹ. اور دوسرے جو تھیں خاتون، انہوں نے پوچھا کہ ان کو جنرلائزڈ، شی از 59 ایئرز اولڈ، ان کو جنرلائز ایکس اینڈ پینز ہیں. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی انویسٹیگیشنز کچھ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. نہیں میرا خیال ہے انہوں نے اچھا ان کو سب سے پہلے اگر ان کو جنرلائز پین ہو رہا ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر سے اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرا لیں. ان کو بتائیں ڈاکٹر کو کہ مجھے جنرلائزڈ ایکس اینڈ پینز ہو رہا ہے، تو وہ ایک پراپر ایم او ٹی ہو جائے اگر بلڈ ٹیسٹ کی فار ایگزامپل، تو وہ بہتر ہوگا ان کے لیے. اور اگر اسپیسیفک کوئی جوائنٹ ہے اس کے بعد پھر بھی کچھ نہیں آتا تو اس میں ایکس رے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے بری طرح کا آرتھرائٹس ہو سرٹن ایریاز میں. لیکن جنرلائزڈ ایکس اینڈ پینز کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ بلڈ ٹیسٹ ضرور کرا لیں پہلے، اور اس کے بعد ایکس ریز وغیرہ، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ. ہاں اس کے بعد جو بھی نیکسٹ اسٹیپ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے جواب سے میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم اس جو وبا ہے اس کے جو اثرات ہیں اس طرف چلتے ہیں. پھر ابھی آنے والے وقت میں گورنمنٹ چونکہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی ختم نہیں کیے. ان میں سے جو ایک ہے جو روزمرہ کی زندگی میں بڑا ایفیکٹ کرتا ہے وہ ہے جمز وغیرہ. پارکس تو اوپن کر دیے ہیں گورنمنٹ نے، لیکن پارکس میں جو آؤٹ ڈور جم کرنے کے لیے جو مشینز وغیرہ ہیں ان پر ابھی بھی بین ہے، وہ انہوں نے کور کی ہوئی ہیں، وہاں پر آپ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو پتہ ہے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے اس کی ریگولر ایکسرسائز وہ ڈیلی کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. تو آپ ان کے لیے کیا تجویز کریں گے کہ جو جم بھی نہیں جا سکتے اور وہ جو ہے آؤٹ ڈور جم بھی نہیں کر سکتے، وہ کس طرح اپنی جو ریگولر ایکسرسائز ہیں ان کو مینٹین کریں؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اکثر لوگ جم جانا صرف ایکسرسائز نہیں، ایک ان کی مینٹل ویل بینگ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں مشورہ یہی ہوگا کہ گھر کے اندر اگر جو کچھ تھوڑا بہت ایکسرسائز وغیرہ کر سکیں وہ کریں. برسک واکنگ کے لیے باہر نکل جائیں، اگر کوئی شخص جاگنگ واگنگ کرتا ہے تو وہ باہر جا کے جاگ بھی کر سکتے ہیں. اگر گھر کے اندر کوئی چیزیں ہیں تو فار ایگزامپل تھوڑا سا ویٹس ہو گئے، یا پھر لوگوں کے پاس آج کل اکثر لوگ نا انہوں نے وہ چھوٹی موٹی باکسنگ کے پنچ بیگز رکھے ہوئے ہیں، مطلب جو بھی چیز ہے جس سے کہ تھوڑی سی فزیکل ایکسرسائز ہو جائے. اس کے علاوہ ایکٹیویٹی ان کی بالکل فزیکل ایکٹیویٹی، یا باہر چلے جائیں. بہت سارے لوگ یوگا کرتے ہیں آج کل، لاٹس آف جگہوں پہ وہ چھوٹی موٹی ایکسرسائزز گھر میں کیا کرنی ہے اس کی ویڈیوز بہت ہیں یوٹیوب پہ، وہ دیکھ سکتے ہیں. لاٹ آف فزیوز آر شوئنگ دوز ویڈیوز، لائف کوچز وغیرہ، تو وہ ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اگر باہر جا کے جاگنگ رننگ کر سکتے ہیں تو ڈو دیٹ. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 10-15 منٹ 20 منٹ گھر کے اندر روزانہ اپنے باڈی کو ایکٹیو رکھیں. اکثر لوگ تو اب خیر میں نے سنا ہے کہ شارٹیج ہو گئی ہے جم ایکوپمنٹ کی ایکچولی آن لائن وغیرہ، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے پرچیز کی ہیں. لیکن اگر محدود اس میں رہ کے کر سکتے ہیں گھر میں تو وہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جم کی ہی کوئی بھی ایکسرسائز ہے، کوئی بھی چیز جو کہ فزیکل بھی رکھیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں. بالکل اگر باہر جا رہے ہیں تو پارکس وغیرہ آج کل جا سکتے ہیں آپ. پارکس وغیرہ میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ آپ لانگ واکس پہ جا سکتے ہیں، اور سیفلی جو بھی آپ فزیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی دیر کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں صحت ہے زندگی، اور اس کا سیگمنٹ آسک جی پی. اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران گوہر موجود ہیں جو آپ کے سوالات کا جوابات دے رہے ہیں. ناظرین، ابھی ہمارے پاس وقت بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم ابھی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد میں آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو پروگرام صحت ہے زندگی کا سیگمنٹ ہے آسک جی پی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران گوہر صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے جو ہمارے ناظرینوں نے جو سوالات کیے ان کے آپ جوابات دے رہے تھے، تو اس میں آپ ایک اور جو ہے چیز ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، وہ پلیز ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. عاصم خان صاحب نے سوال کیا تھا اباؤٹ کانسٹیپیشن اینڈ ویٹ لاس. تو اس کے لیے میں اینڈ ہی 72 ایئرز آف ایج،
تو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا لوگوں کے لیے، خاص کے باؤل کینسر سے متعلق. ظاہر عاصم خان سے ڈائریکٹ تو ریلیٹڈ میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک کویسچن تھا جس سے کہ میرے خیال میں دوسرے لوگوں کو میسیج دینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ if you are 55 or 60 years of age اور آپ کے باؤل ہیبٹس جو ہیں، یعنی کہ آپ کے باتھ روم آپ جاتے ہیں، کبھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے یا کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے آلٹرنیٹلی، یا اگر آپ کے پخانے میں خون آتا ہے، یا اگر ویٹ لاس ہوتا ہے، تو ضرور اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اور ارجنٹلی جو ہے وہ انڈوسکوپی کرائیں، کیونکہ بعض دفعہ اس طرح کے مائنر جو سائنز ہوتے ہیں وہ باؤل کینسر وغیرہ کے بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک پریونٹیو ایک ایڈوائز ہے، کیونکہ ایک سوال آیا تھا تو اس سوال سے آئی تھنک دوسرے لوگوں کو بھی اگر فائدہ ہو جائے تو ہے کہ لوگوں کو اگر اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں تو اس کو اگنور نہ کریں اور اس کی فوری طور پہ انویسٹیگیشن کریں. جو بھی اگر ان کو علامات ظاہر ہوتی ہیں تو وہ فوری طور پر چیز کرنے بجائے اس کے کہ وہ بعد میں کوئی بڑی بیماری، اگر یا تو کانسٹیپیشن ڈائریا ہوتے جا رہا ہے اکثر اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، یا پھر کانسٹیپیشن لمبا ہو گیا، یا ڈائریا لمبا ہو گیا، یا ویٹ لاس ہو رہا ہے، یا خون آ رہا ہے، تو یہ موٹی موٹی چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ کو ہمارا جو ایشین بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ بہت مقبول ہوتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ آپ ان میں، تو ان کی طرف سے ایک سوال آیا تھا ہمارے فیس بک پیج کے اوپر کہ جو ہماری گیدرنگ ہے، سوشل گیدرنگ، اس میں ہم بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، چاہے وہ کڈز ہوں یا اڈلٹ ہوں یا بزرگ. تو اس وبا نے بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے اوپر. وہ مساجد میں اکٹھے ہوتے تھے اپنی گیدرنگ کے لیے، وہ کمیونٹی سینٹرز میں اکٹھے ہوتے تھے، اور یا پھر وہ پارکس کے اندر اکٹھے ہوتے تھے. لیکن اس ساری چیز نے ان کی اس جو لائف کو ہے، لائف پیریڈ کو بڑا متاثر کیا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کیا ایڈوائز کریں گے آپ ان بزرگوں کو کہ وہ اپنی اس لائف کو انجوائے کر سکیں یا وہی احساسات اپنی لائف میں لے کر آ سکیں جس طرح اس وبا سے پہلے تھے؟ تو یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، لیکن ہمارے پاس ایک کالر بھی موجود ہیں تو ہم اس سوال کو پاک کر لیتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلے تو آپ دونوں کو میرا بہت بہت سلام. شکریہ. میرا نام محمد عاصم ہے، میری عمر 77 کچھ اوپر ہے، یعنی کہ 3 مہینے. اور آج سے کوئی 4 ہفتے پہلے میں کوئی 90 میٹر دوڑا تیزی سے، بغیر وارم اپ کیے، بغیر چلتا میں بہت ہوں تیزی سے، ہمیشہ میری عادت ہے. لیکن میں نے تو دوڑ لگائی، دیکھو کوئی میرا پیچھا کرے اگر کوئی تو میں بچ سکتا ہوں کہ نہیں اس سے. تو میرے اپنی مصیبت مول لے لی کہ میرے دردیں جو ہے نا، میں اب نماز میں صحیح طرح بیٹھ نہیں سکتا. تو اب میں نے بھائی کو بروفین بھی لی اور پیراسیٹامول بھی لی. اب تو ذرا دعائیں لے سکتا ہوں آپ لوگوں کی. مجھے کوئی چیز سجیسٹ کریں، کیونکہ میں اس خاندان سے ہوں میں ڈاکٹر بہت ہیں لیکن ان سے رجوع نہیں کرتا. اپنے ڈاکٹر بہت ہیں، میرے جی پی بھی، میری جو ڈاٹر ان لا وہ ٹریننگ جی پی ہے ماشاء اللہ. تو وہ سرجری میں بیٹھیں گی اگست سے. تو میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے جو ہے نا چیزیں بھید وہ اپنے خاندان میں نہیں کھولنا چاہتا. بالکل بالکل. اچھا سویلنگ تو نہیں ہے آپ کی نی میں؟ وہ بتائیں مجھے میں کیا کروں. اچھا سویلنگ تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں سویلنگ کوئی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بالکل. تھینک یو جی. جی ڈاکٹر صاحب. عاصم صاحب ماشاءاللہ 77 years old and you ran for 90 meters, so hats off to you. Actually not bad health, I'm sure. ہاں آئی تھنک آپ نے خود بھی اپنے سوال میں ایک جواب آپ نے دے دیا کہ آپ نے وارم اپ نہیں کیا اور آپ نے اچانک بیسکلی رن کر لیا. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے بعض دفعہ نی جوائنٹ جو ہے وہ انفلیم ہو جاتا ہے، یا ٹیشوز یا لیگمنٹس وغیرہ. تو اس کے لیے ریسٹ سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے. اور ہی کین ٹیک ایکچولی پین ریلیف ایز ویل، فار ایگزامپل پیراسیٹامول، آئبوپروفین وغیرہ تھوڑا بہت. اور فار دا فیوچر فزیو تھراپی از گڈ ایز ویل. ہی کین ہیو فزیو تھراپی. اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں. اگر کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے آج کل، کیونکہ ان کو پہلی دفعہ ہوا ہے، تو میں تو کہوں گا اتنا پریشانی کی بات نہیں ہے. تھوڑا سا انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھ لیں، خود ہی گھر پہ بھی نی کی جو ہے نا ایکسرسائز وغیرہ کر سکتے ہیں فار دا فیوچر. اور تھوڑا سا ریممبر کہ وارم اپ کر لیں چیزوں پہ، شو ویئر اینڈ ایوری تھنگ ایلس. ڈونٹ پش یور بیسکلی جوائنٹ ٹو مچ. کیونکہ دیکھیں ایج ریلیٹڈ ویئر اینڈ ٹیئر تو سب میں ہوتا ہے، تو ان میں بھی ہوگا. لیکن اوبیسلی یو ہیو ٹو بی کیئرفل. یہ تو ایکچولی ہر ایک کے لیے کیئرفل ہے. ہم کیئرفل ہوتے ہیں تو سب کو ہی کیئرفل ہونا چاہیے ایکچولی. لیکن یہ کہ آئی تھنک جسٹ سمپل پین ریلیف اینڈ مے بی اے فزیو تھراپی وغیرہ وڈ بی کوائٹ یوزفل. رائٹ. سو ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں اپنے پچھلے سوال کی طرف جو میں نے آپ سے پوچھا تھا بزرگ لوگوں کی جو لائف ہے، سوشل لائف، اس میں جو امپیکٹ پڑا ہے. دیکھیں
इम्पैक्ट तो सबकी लाइफ में पड़ा है. ज़ाहिर है, यू राइट कि जो लोग थोड़े से रिटायर हैं या उम्र सीधा हैं, उनके लिए एक सोशली हमारी कम्युनिटी में मस्जिदों में जाना, लोगों के घरों में जाना, ये एक एक्टिविटी होती थी एंड कीप देम हैप्पी एंड एक्टिव. और नमाज इटसेल्फ. तो आई थिंक ज़ाहिर है अब सिचुएशन बहुत ही यूनिक है, इसमें हम कंपेयर तो नहीं कर सकते. तो जो भी कर सके, पहली बात डू नॉट कंपेयर. इस वक्त जो कंपैरिजन है ना, हम एक बड़ी यूनिक, मैं हमेशा हर एक को ये समझाता हूँ कि अगर हम स्टार्ट कर देंगे अपनी नॉर्मल लाइफ को प्री कोरोना मीनिंग फरवरी और जनवरी से, तो हम सब डिप्रेस हो जाएंगे क्योंकि लाइफ इज़ चेंज राइट नाउ. तो सबसे पहले तो ये कि कंपैरिजन ना करें और दिमाग में एक चीज़ बिठा लें, जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन करें ज़रूर. तो फॉर एग्जांपल नमाज घर में पढ़ लेते हैं, सही है, फ़ाइन. तो वो अगर आपकी गार्डन है तो गार्डन में वॉक करें. फर्स्ट की एग्जांपल हाफ एन आवर 30 मिनट्स एक बना लें रूटीन के मैं वॉक करूँगा. एक्सरसाइजेज वगैरह करें, लोगों से फ़ोन पे बात करें. आजकल तो सोशल मीडिया और वीडियो कॉल्स वगैरह बहुत अच्छी हो गई हैं, वो लें. तो ये सब चीज़ें अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें चीज़ों से, अदरवाइज इट विल अफेक्ट ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि दिमागी तौर पे भी. सर आप इसमें एक चीज़ एज ए तजवीज़ ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिली के पास गार्डन है और वहाँ वो 2 मीटर डिस्टेंस या 1 मीटर डिस्टेंस, जो अभी प्रॉब्ली 1 मीटर हो जाएगा आफ्टर 4th of जुलाई, लेकिन अभी जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक 2 मीटर डिस्टेंस पर आप खड़े हों, तो क्या आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो करीब रहते हैं, तो वो किसी एक गार्डन में इकट्ठे हो जाएं, अपने से हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलें, लेकिन थोड़ा फासले पर बैठकर तो गुफ्तगू कर लें या जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें वो डिस्कस करते हैं कर लें? देखिए, मैं पर्सनली तो अगेन ये एक बड़ा गवर्नमेंट का इशू है, अनटिल अनलेस दे एडवाइस, क्योंकि आज अभी जो लोग शील्डिंग में थे 70+ या कोई भी क्रिटिकल इलनेस की उनकी उन्होंने बढ़ा दी है. अच्छा, भी उन्होंने ज़्यादा कर. हाँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई शख्स एक सेफ़ इन्वायरमेंट है तो मैं उसको ज़ाहिर है उसको आई थिंक इट्स क्वाइट रीज़नेबल. लेकिन मैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हमें फॉलो करनी होती हैं, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू से कि कब करें, लेकिन हाँ अगर अपने घर में ही वो कर सकते हैं कि 2 मीटर या 3 मीटर पर रह के बैठ सकते हैं और लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, तो आई थिंक इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है. ऑब्वियसली इशू ये है कि जो भी 70+ हैं उनके रिस्क रिलेटेड ज़्यादा हैं कोरोना के कैच करने से, कॉम्प्लिकेशंस के, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है. राइट. नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको दोहराता चलूँ कि आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं, हमारी लाइंस जो है ओपन हैं. आप हमें किसी भी किस्म का सवाल जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल इश्यूज़ से रिलेटेड है वो हमारे एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब से पूछ सकते हैं. डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो हमें बताया गया था, वो ये है कि एक 40 years old मेल, उसको जो है वो बैक बोन में जो है ना लो बैक पेन है और उससे उसको थोड़ा सा झुकने में तकलीफ़ होती है, उसको थोड़ा सा वॉक करने में भी तकलीफ़ होती है, अनटिल के वो कोई पिलो या इस तरह की चीज़ सोते वक्त रखे तो देन ही फील कंफर्टेबल. लेकिन जब वो वॉक करता है या और रनिंग तो बहुत मुश्किल से वो रनिंग हो रही है, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह से वो इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? 40 जो सबसे कॉमनेस्ट बैक एक है बिटवीन द एज ऑफ 20 to 60, हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल बैक एक या नॉन स्पेसिफिक बैक एक. यानी कि वो जो जोड़ पीछे के जो जॉइंट होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है या लिगमेंट्स वगैरह की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेन होता है. ज़्यादातर लोगों को ये पेन इस तरह होता है कि वो कोई चीज़ झुक के उठा रहे हों या पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो या हैवी शॉपिंग ले लियो या किसी सोने के उठने के बाद होता है, तो या काम की सूरत में कोई हैवी ड्यूटी काम करता है उसके, ये ज़्यादातर इस सूरत हाल में होता है. तो सबसे पहले तो अगर ये पेन इस तरह का और ये अचानक होता है कि मैं ये झुक के उठा रहा था और अचानक चुक पड़ जाए, जैसे बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने ये मेंशन की चीज़, तो वो चुक पड़ जाती है. तो वो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि वो शुरू में थोड़ा सा एहतियात करें और थोड़ा सा रेस्ट कर लें 1 दिन, लेकिन टोटल बेड रेस्ट ना करें. अक्सर लोग होता है कि वो हफ्तों लेट गए, ये नहीं करना. अच्छा, इसके अलावा सिंपल जो मेथड है वो सिंपल बैक एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, वो अपने इंटरनेट पे देख सकते हैं. कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, बड़ी सिंपल जेंटल बैक एक्सरसाइजेज करें. वार्म कंप्रेस या कोल्ड कंप्रेस लगाएं अपनी कमर पे, यानी कि गर्म और ठंडा जो क्या भाप लें. और इसके अलावा जो है वो जेल्स लगा सकते हैं, टॉपिकल मसाज कर सकते हैं, ओरल पेन किलर्स भी ले सकते हैं जो कि क्वाइट यूज़फुल होंगी. जो की थिंग इज़ नॉट टू जस्ट हैव अ कंप्लीट बेड रेस्ट, लेट जाएं और बस भूल जाएं, तो उससे और ख़राबी हो जाएगी. और ये क्योंकि रिकरेंट प्रॉब्लम हो सकता है, ये बार बार हो सकता है, अक्सर बार बार होता है, तो उसके लिए अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो वेट को कम कर लें. सही. और रेगुलर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि जो स्टिफनेस है बैक की
वो जाती रहे, अदरवाइज़ ये दोबारा होता रहेगा आपके साथ। राइट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस जवाब का। अभी हमारे साथ 2 कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अपनी एज और नाम एंड जी मेरा अपना सवाल है, एज के वास्ते नहीं, मेरे बेटे का है, उसका नोज अक्सर ब्लॉक रहता है जब से वो छोटी एज से लेके अभी तक, तो आप क्या सजेशन करेंगे? दूसरा, जो लोग स्टक हुए हैं 50-60 प्लस, उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे कि वो जब वो सफ़र वगैरह करें या किस तरह वो आइसोलेशन करें? जब जैसे अमेरिका वगैरह में कुछ लोग स्टक हुए हैं तो इधर लंदन उन्होंने आना वापस, तो उनके लिए क्या सजेशन करेंगे? अच्छा, आपके बेटे की जो एज क्या है? मेरे बेटे की एज 27 या 27 एज। ओके। अस्थमा था बेबी टाइम से लेके अभी तक की। कोई दवाई नहीं यूज़ की उसके लिए? आपने कोई दवाई बेटे के लिए यूज़ नहीं की? नहीं, अभी तो कोई नहीं दवाई ले रहा, कुछ भी नहीं। और उसको ये कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है? हाँ, उसको बार पहले भी हो चुका है? हाँ, बचपन से ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। माशाल्लाह आपके बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, लोगों को बहुत अवेयरनेस मिलती है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपकी टीम को भी, इस्लाम चैनल को भी। मैंने आपसे ये मशवरा लेना, मेरी एज 59 है और मुझे डायबिटीज, हार्ट कंडीशंस और एस्मा भी है। और मैं 10 मार्च को लास्ट डे था जब मैं काम पे गई थी। मैं एज ए टीए काम करती हूँ सेकेंडरी स्कूल में। तो मेरी बेटी को सिम्टम्स थी, तो हम लोगों ने क्वारंटीन किया। तो उसके बाद से फिर मुझे उन्होंने कहा कि एंड ऑफ जून यू हैव टू स्टे इन, मेरे डॉक्टर ने कहा। तो अब मैं काम पे वापस जाना चाहती थी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा है कि आपको मास्क पहनना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। और फिर मेरे काम वालों ने मेरे से मीटिंग की, तो ऑब्वियसली मेरे पास 5 रिस्क फैक्टर थे। तो उसने मुझे लिखा कि नॉट टू फिट टू वर्क, लेकिन मैं काम पे तो नहीं जा रही। लेकिन मेरी अम्मी जी हैं, उनकी एज माशाल्लाह 81 है, वो भी डायबिटीज़ भी है, हार्ट कंडीशन भी है और एस्मा भी है उन्हें, और उन्हें इस वक्त हमारी ज़रूरत है उनके लुक आफ्टर के लिए। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मैं मास्क भी पहनूं और सोशल डिस्टेंस भी रखूं तो उनकी जाके कोई लुक आफ्टर कर सकती हूँ या नहीं? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कारण मौजूद हैं, फिर आप इकट्ठे उन तीनों सवालात के जवाब दे दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं फर्ज मील बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम है और शुगर भी है और एथराइटिस भी है और ये बहुत कुछ है, यानी कि बहुत मैं काफ़ी मतलब है कि अपसेट हूँ। और डॉक्टर साहब, मुझे ना कपल ऑफ वीक्स, मुझे आजकल तो डॉक्टर भी बड़ा मतलब बिजी हैं, वो जैसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, मगर ये है कि मुझे बड़ी एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि मेरी ना ऐसे लगता है कि जैसे मेरी बॉडीज में ना, थाइस में, लेग्स में, शोल्डर में, बैक साइड में, को मेरी वेन्स में स्क्वीज करता है मुझे ना, और बहुत फिर टाइटनेस हो जाती हैं, और मेरी थाइस में भी और एंकल्स में भी स्वेलिंग आई हुई है, और मेरे शोल्डर आजकल बहुत मेरे दुख रहे हैं। आपने अपनी एज नहीं बताई मुझे। मेरी एज है जी 60 प्लस है, नियरली 60 है। 60 है, ओके, ठीक है। आपकी ठीक है जी, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, आपके पास 3 सवाल हैं। जी, सबसे पहला तो खातून ने पूछा था कि उनके बेटा है जो 27 ईयर्स ओल्ड और उसकी नोज़ ब्लॉक रहती है, तो जो रिकरेंट अगर नोज़ ब्लॉक रह रही है तो उसके लिए हम सबसे पहले एलर्जिक राइनाइटिस हम सस्पेक्ट करते हैं, यानी कि जो सीजनल एलर्जीज़ होती हैं जिसकी वजह से हो जाती है। इसके अलावा अगर कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर तो उसके लिए फिर दूसरी चीज़ें हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि अगर जो कॉमन इशू है वो हे फीवर का होता है, हमारी कंट्री में एलर्जिक राइनाइटिस का होता है, और उसकी तमाम दवाइयाँ जो है ना ओवर द काउंटर मिल सकती हैं, तो उसके लिए वो एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स भी ले सकती हैं, और नेज़ल स्प्रे भी आता है एंटीहिस्टामिन का, वो भी यूज़ कर सकती हैं। उससे अंदाज़ा हो जाएगा उनके बेटे को कि वो बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर फ़र्ज़ कीजिए उसने तमाम चीज़ें यूज़ की और वो बेहतर नहीं हो रहा, तो अपने डॉक्टर से रिज्यू करें। वो मज़ीद या तो, क्योंकि अगर एलर्जिक राइनाइटिस की हिस्ट्री की हो सकता है वो कुछ और स्ट्रॉन्ग स्टफ़ दे, या अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उस तरफ नहीं जाता तो फिर उसके लिए नाक में कैमरा डाल के चेक हो जाएगा। उन्होंने एक सवाल किया था कि लोग जो स्टक हैं अमेरिका में या US डिफरेंट जगहों पर, उनके लिए क्या सिचुएशन होगी। टू बी ऑनेस्ट विद यू, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर दैट क्वेश्चन, बिकॉज ये तो
government totally policies हैं related to the government. yeah, and I think we have just to follow the guidelines whatever they come up with, unfortunately. Right. अच्छा, दूसरा सवाल था खातून थी, उन्होंने कहा था कि उनको डायबिटीज़ है, एस्मा है, शी इज़ 59 years old, और वो क्या अपनी वालदा की हेल्प कर सकती हैं कि नहीं. देखें, अगर वो ख़ुद सेल्फ आइसोलेशन में है, वो ख़ुद किसी से राब्ते में नहीं है, जो कि मुझे लगा कि वो नहीं है, तो ज़ाहिर है अगर वो अपनी वालदा के पास जाएँ. उन्होंने पहले 14 days का जो है ना वो क्वारंटाइन किया, बाद में वो स्कूल गई, लेकिन स्कूल वालों ने कहा कि अभी आप इधर वो तो घर पे ही है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो घर पे ही है. तो अगर फर्स्ट कीजिए वो घर पे हैं, उनका किसी से राब्ता नहीं है, तो ऑब्वियसली वी अज्यूम के शी इज़ फाइन एंड नॉट with corona, so of course with the social distancing she can visit her mom and वो जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर रहते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी बातों से लग रहा है कि वो किसी से मिल नहीं रही हैं, सेल्फ आइसोलेशन भी कर रही हैं, तो ऑब्वियसली शी इज़ सेफ टू गो एंड डू थिंग्स. दूसरी खातून ने सवाल किया कि उनके साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर इतनी जल्दी, लेकिन मैं उनको सिर्फ एक अंदाज़ा बता सकता हूँ, क्योंकि अगर उनको जनरलाइज बॉडी में बॉडी एक्स या टायर्डनेस हो रही है और उन्होंने अपने डॉक्टर को नहीं बताया है, तो पहली चीज़ मैं बताऊंगा कि अपने डॉक्टर से रजू करें और वो ब्लड टेस्ट एक करा लेगा, जिससे कि अंदाज़ा हो जाएगा. अगर उनके पास उन्होंने बोला कि मुझे काफ़ी सारे दूसरे सारे प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है डिटेल उन्होंने नहीं बताई, लेकिन हो सकता है दूसरी चीज़ ये है कि कोई चीज़ फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो गया, या फॉर एग्जांपल किसी कोई दवाई है, कोई ऐसी चीज़ है वो सूट ना कर रही हो, या हो सकता है किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड ख़राब हो गया हो. तो काफ़ी सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट से वाजे हो जाएंगी और उसके बाद जो डॉक्टर है वो उनको अकॉर्डिंगली एडवाइस दे देगा. तो मेरे ख्याल में पहला स्टेप मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि जाके ब्लड टेस्ट करा लें और उससे थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि उनकी क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है. जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इन 3 सवालात के जवाब दिए हमारे नाजरीन को. अभी एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अच्छा, मेरी बेटी 21 और उसको 2 हफ्ते पहले ज़ुकाम हुआ था, तो उसके बाद 2 हफ्ते उसका कोई टेस्ट नहीं आना, कोई टेस्ट, कोई स्मेल, कुछ भी नहीं होना. अच्छा, वो वरी है, थोड़ा वरी कर लीजिए. उसका कोविड टेस्ट हुआ है? नहीं ऐसा तो सबको पूछने पर डॉक्टर को नहीं गई अभी. कोई टेस्ट नहीं कराया? नहीं. और कितने दिन हो गए आपने बोला? 3 हफ्ते? 2 हफ्ते हो गए उसको काम लगा था. अच्छा, तो अभी उसको 2 हफ्ते से 1 हफ्ते से उसका टेस्ट नहीं आनी, ना स्मेल आनी है, ना टेस्ट आनी, कुछ भी नहीं. अच्छा, उसको पहले ये नहीं होता था? कभी भी नहीं हुआ था. मैं इसका बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहब. अभी डॉक्टर साहब इनको जवाब देने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आप उनका भी सवाल ले लें, फिर आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरा सवाल ये है कि मेरी ना ये सांस वाली जो नाली है ना, ये हर वक्त पक्की रहती है, जैसे छाले बन जाते हैं, और मैं अपने डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ और वो मुझे एंटीबायोटिक दे देते हैं. तो वो एंटीबायोटिक से ना मुझे 1-1.5 महीना आराम रहता है, फिर मुझे दोबारा छाले से बन जाते हैं. कहाँ पे छाले होते हैं, फिर से बताइएगा? ये सांस वाली नाली में जहाँ से खाना जाता है ना अंदर. तो आपको छाले कैसे पता है छाले होते हैं? किसने बताया आपको ये? मुझे फील होता है, महसूस होता है. अच्छा, फील होता है आपने अंदाजा लगाया बेसिकली. लेकिन मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ ना, जब भी आजकल तो फोन पे ही बात कर सकते हैं ना डॉक्टर से. जी. तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भी भेजा, हॉस्पिटल वालों ने तो मुझे भगा दिया, कहते आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है. तो अभी ये रिसेंटली आपको शुरू हुआ है ये बेसिकली? ये तकरीबन 6-8 महीने से हो रहा है. तो मुझे डॉक्टर हमेशा एंटीबायोटिक ही देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक से मुझे थोड़ी देर के लिए आराम आ जाता है, लेकिन फिर 2-3 महीने के बाद फिर हो जाते हैं. अच्छा, खाने पीने में तो दुश्वारी नहीं है? महसूस तो होता है, खट्टी चीज नहीं खा सकती और स्पाइसी नहीं खा सकती ज्यादा. वजन वगैरह तो लूज नहीं हो रहा? जी, वजन वगैरह लूज तो नहीं हो रहा? नहीं, वजन तो बढ़ता ही जा रहा है. अच्छा, ब्लड टेस्ट करवाया है? नहीं, अभी कुछ नहीं करवाया. अच्छा ठीक है. इनकी हमने आपकी एज क्या है? 54. जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब. अभी आपको इसका जवाब देंगे. जी डॉक्टर साहब आपके पास 2 जो है. सबसे पहले मैं इनके क्वेश्चन का जवाब दूंगा. ये जो बता रही है सांस की नाली में छाले हो जाते हैं, तो ये तो पहली बात है, अंदाजे वाली बात है, इसको पता नहीं है. तो वो एंटीबायोटिक दे रहा है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है. आई थिंक मैं इनको फिर वही बात है बेसिक कि पहले जाके थोड़े से, अभी ब्लड टेस्ट खुल गए एक्चुअली, तो जाके ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें अपनी सर्जरी से, और उसके डिपेंड करता है क्या रिज़ल्ट आता है, उसमें थायराइड वगैरह सारी चीज़ें चेक करा लें, फुल ब्लड काउंट और लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन जो भी होता है नॉर्मली वो करा लें, और लेट्स सी व्हाट कम्स अप विद. इसके अलावा फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उसमें भी कुछ नहीं आता और ये मामला जारी रहता है, तो आई थिंक
शी प्रॉब्ली विल नीड सम कैमरा चेक, उससे ENT वाले वगैरह जो है ना वो या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाले जो है ना उनको डिपेंड करता है इनको कहाँ पे फीलिंग हो रही है, उस पर वो कैमरे से चेक करके बताएंगे। आई थिंक ये इस वक्त तो गैस वर्क ही हो रहा है, इनको 6 महीने से हो रहा है, ये तो प्री कोविड इशू है एक्चुअली। तो आई थिंक मेरे ख्याल में तो ये फर्स्ट स्टेप ये लें और उसका सेकंड स्टेप जो है वो आई थिंक अगर उससे भी कोई आंसर नहीं आता तो वो फॉलो करें। अच्छा, इसके अलावा दूसरा सवाल ये था कि उनकी जो खातून ने सवाल किया, उनकी बेटी है 21 ईयर्स ओल्ड और उसको ज़ुकाम हुआ 2 वीक पहले, लेकिन अभी एक्चुअली शी कांट स्मेल एनीथिंग, तो उनको वो मैं उनको अगर वर्किंग एज गर्ल तो आई वुड एडवाइस कि कोविड का टेस्ट करा लें, बेहतर होगा। पहली बात तो ये क्योंकि आज कोई भी नया सिम्टम यू नो लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, न्यू सोर थ्रोट, न्यू कॉफ, आजकल के दौर में तो हम यही अज्यूम करते हैं कि कोविड ना हो, तो उसके लिए मेरा मशवरा होगा आजकल टेस्ट बहुत आसानी से हो रहा है, जाके एक टेस्ट करा लें। अगर टेस्ट हम शो अगर 14 डेज से पहले के सिम्टम्स है तो शायद नेगेटिव है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड इट्स बेटर टू हैव अ टेस्ट डन एंड शी शुड सेल्फ आइसोलेट टिल देन। और अगर उसके बाद फर्स्ट की जो टेस्ट नेगेटिव आता है तो मेरे ख्याल में डॉक्टर से मशवरा कर लें, नज़ले ब्लड लेट्स सी अगर ये कोविड की वजह से नहीं है तो उसके लिए सीजनल यू नो स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कीजिए अगर साइनोसाइटिस की सिम्टम आते हैं इन्फेक्शन के तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक भी दे सकता है, लेकिन एज अ फर्स्ट स्टेप कीपिंग इन माइंड द करंट सिचुएशन आई वुड एडवाइस टू गो फॉर कोविड टेस्ट टू बिगिन विद। राइट डॉक्टर साहब, एक हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा जो हमें पूछा गया हमारे नाजरीन की तरफ से ही। प्री डायबिटिक्स कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कि उनकी सर्जरी या डॉक्टर्स वगैरह एडवाइस करते हैं कुछ चीज़ें, तो हमें ये क्वेश्चन ये आया है कि ए पर्सन हु इज़ जस्ट लाइक 32 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ वेरी यंग, तो उसको प्री डायबिटिक्स कहा गया है, उसको क्या आप एडवाइस करेंगे कि वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखे और अपनी डायबिटीज़ से वो बच सके ताकि उस स्टेज पर ना चला जाए? सो प्री डायबिटिक के लिए क्विक एडवाइस ये होगी कि अपने खाने का ख्याल करें, खाना कम खाएं, कैलोरी इनटेक कम करें और वेट को रिड्यूस करें, स्पेशली द वेट अराउंड योर वेस्ट एरिया। अगर आप वेट रिड्यूस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्री डायबिटिक आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो खाना एहतियात करें, डाइटिशियन से रजू करें या फिर आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे हेल्प अवेलेबल है, और एक्सरसाइज करें, वेट को कट डाउन करें। अगर वो वेट को रिड्यूस कर लेंगे तो वो बॉर्डर के इस तरफ चले जाएंगे डायबिटीज़ के, अगर नहीं करेंगे तो उस तरफ चले जाएंगे। एशियन पॉपुलेशन में स्पेशली डायबिटीज़ हमारे यहाँ फैमिली हिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो आई थिंक वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल चेंज एंड दैट विल हेल्प देम अ लॉट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे नाजरीन के बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। हमारे नाजरीन आपके बेहद मशकूर हैं, इस्लाम चैनल उर्दू आपका बेहद मशकूर है कि आप अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आते हैं, हमारे नाजरीन को एडवाइस करते हैं। नाजरीन, आप इस्लाम चैनल उर्दू के ऊपर प्रोग्राम देख रहे थे सेहत है ज़िंदगी, और उसका हमारा सेगमेंट होता है आस्क AGP। नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम महीने में 2 दफ़ा होता है। हम आपको एडवाइस करेंगे कि अगर आपने कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। मैं इस्लाम चैनल उर्दू के ज़रिए आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपने मेज़बान रिजवान अरशद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।